सारिका जी, वेरी हाँ। ओके, सो वेलकम नेहा जी, एंड आई एम श्योर आपको डेफिनेटली सुन के अच्छा लगेगा और आपको लगेगा अरे सही बोलना, सही सोचना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें होने के लिए। ओके, अभी स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग, या सॉरी, वील स्टार्ट विद द वार्म अप एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन। पहले 2 मिनट हैं तो समवन वांट्स टू शेयर कि आज आप अपने जो आपने अपनी ड्रीम लिखी, फिर उसके बाद जैसे रौंडा बन ने कहा था हमको कि आपको अपनी ड्रीम को सैचुरेट करना है ग्रैटिट्यूड से, उसको विजुलाइज कर रहे थे, आप सोच रहे थे उसके बारे में, तो आपको कैसा लगा? हम्म, Yeah, हाँ, I felt as if I'm already, living whatever my dreams I wrote down. अरे And it was wonderful to listen to Ranveer Singh, Bipasha, and Anushka and all. यस यस यस, इट्स Done वंडरफुल। with it. एवरीवन, Yeah. सो मेनी पीपल आर फॉलोइंग इट ऑलरेडी। माने आप सोचो ना, वो लोग तो आज कहाँ पहुंच गए हैं। और रणवीर सिंह ने बोला ना, उसने तो कौन सी केक थी, 21st बर्थडे की केक थी ना। हाँ, आप सोचो कब, 23rd. या कब से वो लोग कर रहे हैं, और हम लोग को लगता है हम ही लोग एक यूनिक है, हम ही ने, हमारे पास ही अभी ये जादू आया है। नो, एवरीवन No. नोज इट। सीक्रेट मूवी में तो Actually, काफी। read The Secret on our own, but वही है group में करने से I get the motivation is far different level, next हाँ, level. यस यस, हाँ, I रणवीर lost out सिंह। 2 days, लेकिन I इट्स saw ओके, your result. कोई बात नहीं। I've done my reading and everything. वेरी गुड, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूएशन में रहनी चाहिए। एंड जैसा Yeah. रणवीर सिंह फैन ने कहा, 23rd बर्थडे पे उसने पता क्या था, तो यस, तो वही होगा। सो अच्छा, एनीवन एल्स? थैंक यू वंदना जी कि आपने प्रैक्टिस किया और आपको बिल्कुल अच्छा, Priya, you are from Kolkata, right? Even I'm या from Kolkata. ओ Which school are you from? Lamachania? नो नो, आई एम फ्रॉम महादेवी बिरला गर्ल्स, नॉट फ्रॉम Okay, लमाट। MD girls. Okay. या गर्ल्स, Because यस Tulsi was telling us the other day, both of you have done the same school in schooling. So I यस, thought maybe Lamachania. I'm from Lamachania, so ओके ओके okay. ओके, Chalo, या so nice to have you यस from यस, Kolkata. yeah. Many of us are here from Kolkata, and in fact, it doesn't matter. How does it I'm matter? married in Nepal. I'm staying in Nepal. I'm married in Nepal. Okay, okay, wonderful. See, from all over we are connecting. That is so wonderful. आप कहीं पे भी अभी हो, कहीं पे भी चले जाओ, it's totally cool and we are connecting on Zoom. हमको पता ही नहीं है ना? It is like so nice, so wonderful. Thanks to this amazing Zoom app, yeah, and our internet Yeah. and all the 4G and all the Yes, connections yes, that we have. It is wonderful. definitely. Yeah. Ma'am, from where you are, ma'am, Calcutta? अभी हम लोग वो बाद में बात करेंगे, अभी सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक Sorry, sorry. Wrong है? Yes. track. It doesn't matter. I'm an Indian. I could have been born anywhere in the city, or sorry, in the world, but I am an Indian, and I feel like Calcutta is the place for me. I love it from the bottom of my heart. Okay, though I'm not born over here, but still, it's like the city for me. Yeah. So thank you and welcome everyone. We'll do the introductions in some other सेशन व्हेन वी आर फ्री, हमारी प्रैक्टिसेस हो रही होंगी, वी कैन चिल एंड टॉक, तब करेंगे हम लोग, या मे बी ऑन अ संडे आफ्टरनून और सम टाइम वील जस्ट कैच अप कि क्या चल रहा है लाइफ में, एंड नो राउंड अप बर्न, जस्ट चिट चैट मस्ती, नो गॉसिप बट लॉट्स ऑफ मस्ती, या। So let's start with the warm up and someone will read, and after the reading then we'll take some sharings कि आज आपने जो प्रैक्टिस की आपको कैसा लगा, या। So please unmute yourself, switch on the camera, and let's do the 10 little fingers. So 1, 2, 3, start. Oh yes, we can dance also on that, Seema ji. सीमा जी, आप तो कहाँ पे हो, डिस्क में हो क्या आप कहीं, वहां पे हम लोग। ओके, कूल। सो 1, 2, 3 स्टार्ट। 10 10 little little fingers, 10 fingers, little 10 toes, little 2 toes, little 2 ears, little 1 ears little and 1 nose, little 10 nose. little 10 fingers, little 10 little fingers, toes, 10 little 2 toes, little ears 2 and little 1 ears and little 1 nose। little nose. वंडरफुल। एक्चुअली ना सीमा जी, ये बहुत अच्छा किया आपने, अभी हम लोग को एक तो क्यू दिया है। जिसकी भी एनर्जी थोड़ी लो लगे ना, कभी भी एनर्जी लो मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली अगर आपको लगे कभी भी कि थोड़ा सा हम लो फील कर रहे हैं, तो आपको तुरंत इसी टाइप के गाने चलाने लेंगे और उसमें कुछ तो भी डांस कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा लगने लगता है। आई एम टेलिंग यू, आप द 5 AM क्लब पढ़ोगे, मेन जन है जो पूरी सबको बताता है, वो यही करता है, कभी भी उसको कुछ इशू हो रहा होता है ना, वो तुरंत पुशअप करने लगता है, ठीक है, वहीं पे मीटिंग के पहले लोगों के संग खड़ा हुआ वहीं पे कूद के लेट के वो पुशअप करने लगता था। इफ यू हैव रेड द बुक, आपको पता होगा, उसमें वो बाद में बताता है, बट ही वुड डू दैट। तो जब भी हम हमारी बॉडी को मोशन में लेके आते हैं, तो कहीं पे भी जो स्टक एनर्जी होती है, जो अपन लो ऑन एनर्जी फील कर रहे होते हैं, वो तुरंत ठीक होने लगता है।
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो फ्लो रुक जाता है, एंड व्हेन वी आर इन एक्शन इट्स लाइक आपने अगर ऐसे ऐसे भी किया तो भी वो अच्छा हो जाता है। और अगर आप डांस करने लगे, कूदने लगे, तो आपके ऑफ कोर्स वो हार्मोन्स भी अच्छे वाले फ्लो करने लगते हैं, एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर मेंटली ऑल्सो। या दैट इज वाई इट इज सेड एक्सरसाइज इज सो इम्पॉर्टेंट, डांसिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। कुछ भी इस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। राजन सर तो बहुत बोलते हैं, और वैसे भी बोला जाता है ट्रैम्पोलिन पे जंप करना बहुत बहुत इफेक्टिव होता है, नॉट ओनली फॉर योर बॉडी, जहाँ पे भी कहीं पे ये स्टक चीज़ें होती हैं वो ठीक होने लगती हैं। आप स्किपिंग करो, आप जॉगिंग करो, ऑफ कोर्स आपको शूज़ पहन के, प्रॉपर कपड़े पहन के ही करना चाहिए। आई विल नॉट से कि आप सडनली कहीं पे भी नंगे पैर स्किपिंग, रनिंग, जॉगिंग करने लगो, नो। बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फिजिकल, इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर आर इमोशंस ऑल्सो। या सो हु वांट्स टू रीड टुडे? I'll read there. हाँ, यस मामा जी, यू कैन रीड। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। आज हमारा डे 14 है, Under that. या एंड वी हैव बहुत वो कल वो आप लोग को भेज रहे थे ना ड्रीम्स के बारे में, जस्ट 1 सेकेंड। Sorry. जस्ट 1 सेकेंड। जनरली हम आई फॉरगॉट कि मैंने कल रात में आप लोग को वो भेजा था। या प्लीज स्टार्ट। I'll start from. या Okay. हाँ, Day 14. Have a magical day. यस। तो अब हैव मतलब क्या होता है? अब हम लोग बहुत सारे इंग्लिश वर्ड मीनिंग यहाँ पे करते हैं। समवन वांट्स टू से हैव का मतलब क्या होता है? मेरे पास है। Exactly, मेरे पास है। तो जब अपन हैव बोल रहे हैं, रॉन्डा बर्न कह रही हैं, just one second, या थैंक यू नेहा जी। रॉन्डा बर्न कह रही हैं हैव अ मैजिकल डे। तो आज की जो प्रैक्टिस है उसका नाम है हैव अ मैजिकल डे, माने हमारे को मैजिकल डे ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग। बोले कैसे? दिन तो शुरू भी नहीं हुआ है, कैसे पहले से ही मैजिकल हो गया? या सो लेट्स सी द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड क्या होता है यहाँ पे, एंड अंडरस्टैंड हाउ वी कैन हैव अ मैजिकल डे। हम सबको मैजिकल डे चाहिए ना। मैजिकल डे क्या होता है कि हमारे मन की सारी चीज़ें हो रही हैं, गुड न्यूज़ आ रही है, हमारे फाइनेंशियल्स अच्छे हो रहे हैं, हमारी हेल्थ भी अच्छी है, थोड़े से हैप्पी स्माइलिंग फेसेस दिख रहे हैं, आपके भी मेरे भी सबके, इज़ दैट अ मैजिकल डे? आप शॉपिंग करने गए हो, आपको डिस्काउंट मिल गया, आप कहीं पे भी कोई अपॉइंटमेंट के लिए गए, आपको तुरंत, आपको वेट भी नहीं करना पड़ा, तुरंत आपको उसने अटेंड कर लिया एंड अच्छे से आपका सब कुछ हो गया, दैट अ मैजिकल डे? हाँ, कि घर पे आपने कुछ बनाया, सिंपल नॉर्मल डे भी तो मैजिकल हो सकता है ना। आपने घर पे किसी को इनवाइट किया एंड सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया, या आपने घर पे नॉर्मल सिंपल खाना बनाया है और वो भी अच्छा बना। कभी कभी हम इतना एफर्ट करते हैं फिर भी उसका हम लोग को रिजल्ट वो नहीं मिलता, जो सिंपल चीज़ों में भी। या सो मैजिकल डे वुड बी समथिंग विच हैज़ एवरीथिंग दैट वी वांट, वुड बी अ मैजिकल डे। वो कैसे हासिल करना है, वो कैसे हमको मिलेगा, हमारे पास कैसे आएगा, आज की प्रैक्टिस उसी के बारे में। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस पिक्चर, आप देखिए एक क्लॉक रखी हुई है, अलार्म क्लॉक, बेड साइड टेबल हो सकता है, शीशे की साइड टेबल हो सकती है, यहाँ पे बुक्स रखे हुए हैं, आई डोंट नो व्हाट इज दिस इज अ प्लांट, हाँ पेंटिंग है वॉल में, या और इट कुड बी अ विंडो, वो नहीं समझ लग रहा है, इट कुड बी एनीथिंग, और इट कैन बी अ कबर्ड ऑल्सो, यहाँ पे हैंडल है, यहाँ पे आप देखो, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मैजिकल डस्ट। इस अलार्म क्लॉक के ऊपर में बहुत सारी मैजिकल डस्ट है। या सो इज द पिक्चर टेलिंग अस दैट कि व्हेन वी आर डूइंग थिंग्स ऑन टाइम, हमारा दिन मैजिकल हो जाएगा। क्या हम उस डे को मैजिकल बना रहे हैं पहले से ही? 7:30 इज़ डेफिनेटली अ मॉर्निंग टाइम, बिकॉज डे आपका मॉर्निंग में ही शुरू हो रहा है, और सुबह से ही हम पूरे दिन पे मैजिकल डस्ट पाकल करके उसको अपना स्प्रिंकल करके उस डे को हम मैजिकल बना रहे हैं। सो लेट्स रीड एंड सी हाउ वी डू दैट। या sorry, just 1 second, I'll increase the font size also, yeah, so it is more comfortable to read. Yeah. Okay. Intentions compressed into words enfold magical power. Deepak Chopra, B. 1946, medical doctor and writer. या To तो see in दीपक चोपड़ा, जस्ट 1 सेकेंड, दीपक चोपड़ा के बारे में सब सुना हुआ है, या एवरीवन नोज हु इज दीपक चोपड़ा? ही इज अ Yeah, मोटिवेशनल स्पीकर, या
और उनकी बुक्स हैं बहुत सारी, या एंड वो अभी भी बहुत सारे आप लोगों ने किया है 21 डे अबंडेंस मेडिटेशन? हाँ, जिन्होंने नहीं किया है, इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। वो जस्ट व्हाट्सएप पे रहता है, एक मेडिटेशन करना पड़ता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड डन इवन बिफोर दिस मैजिक बुक हैड कम इनटू माय लाइफ। इट वाज वंडरफुल। कुछ मेडिटेशंस होती हैं और वो पूरा गाइड करते हैं कि हम अपने आप को, हमारे दिमाग को, हम ना जो हम इतने सारी स्टक चीज़ें रखते हैं उसको खाली कैसे करें, किसके लिए ग्रैटिट्यूड करें। एक डिफरेंट टाइप की चीज़ है। इट इज़ वंडरफुल। अगर आपको मौका मिले तो आप कर लेना। अदरवाइज वी आर जस्ट रीडिंग व्हाट ही इज सेइंग एंड ही इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल पर्सन। जो भी उनके कोट्स होते हैं, आई हैव रेड हिज बुक ऑल्सो, 7 लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस। इट इज़ दैट इज ऑल्सो वंडरफुल। तो वो ही इज टेलिंग अस इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स एंड फोल्ड मैजिकल पावर। कोई भी चीज़ में अगर हम इंटेंशन सेट नहीं करें तो क्या होता है, अच्छा भी हुआ, गंदा भी हुआ, कुछ भी हो सकता है। आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो कोई एक गोल सेट करके जाते हो ना, कि मैं क्यों एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। अगर आप कोई डाइट फॉलो करते हो तो आप ये सोचो ना कि हम ये डाइट फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे, मेरे हेयर अच्छे हो जाएंगे, मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी हेल्दी डाइट करने से। या तो क्या होता है, पहले ही सोच लेते हो कि आप क्यों कर रहे हो वो चीज़। अगर आप कोई अपॉइंटमेंट के लिए भी जाते हो, अपने हेयर कट के लिए भी जाते हो, तो आपको तो पता, आप ऐसे जाके बैठ जाते हो, हाँ मेरे हेयर कट कर दो। डू वी डू दैट? हाँ, आप बोलते हो कि मुझे ट्रिम करना है, मुझे एकदम शॉर्ट चाहिए है, राइट? यू आप हर चीज़ में पहले से ही अपना एक गोल सेट करके उसको बोलते हो। तो दैट इज़ एन इंटेंशन। एंड नाउ ही इज टेलिंग अस इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स। माने जब हम अपने इंटेंशन, क्या हुआ, एक मन का एक थॉट है ना, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर माइंड। उसको जब हम शब्दों में वो कर देते, कन्वर्ट कर देते हैं, तब उसके अंदर मैजिकल पावर आ जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, आप दिन में कुछ भी करने जा रहे हो या कभी भी कुछ भी करने जा रहे हो, अगर हम उसको बोल देते हैं तब वो उसमें मैजिकल पावर आ जाता है। इट्स लाइक यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड विद योर वर्ड्स। हाँ, तो क्या हुआ, हमने जो सोचा वो ही हम बोलेंगे। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, आपने ऐसे ही आप कहीं भी चले गए, आपने बोला ही नहीं उसको, या जैसे अब कई जन होते हैं ना, वो बोलते ही नहीं है कि उनको क्या खाना है, क्या पीना है, तो क्या होता है, उनके सामने कुछ भी आ जाता है, देन दे से मुझे तो वो खाने का मन था। तो जब आपने बोला ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? या सो व्हेन यू आर स्पीकिंग, देन व्हेन यू आर कन्वर्टिंग योर थॉट्स इनटू वर्ड, दैट इज द टाइम व्हेन मैजिक हैपन। तभी हमारी वो दुनिया बनती है। सो लेट्स रीड। To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words, thank you, for each one going well before you've lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. या तो नाउ रोंडा बर्न इज टेलिंग अस कि अगर हम देखें और एक्सपीरियंस करें, मतलब दिख तो रहा ही है और उसको हमको एक्सपीरियंस भी करना है, किसको, एक मैजिकल डे को, तो हमको क्या करना है, पहले से ही ग्रैटिट्यूड करके सेट कर देंगे, तब हमारा दिन पूरा मैजिकल हो जाएगा। अब आप देखिए, आज से पहले तक की जो भी प्रैक्टिसेस थी, कल की छोड़ के, 13th वाली डे की छोड़ के, हर प्रैक्टिस में क्या हो रहा था, आप जो कर रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल, जो कर चुके हो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो रहे थे, जो हमको मिला और जो मिल रहा है उसके लिए अपन ग्रैटिट्यूड कर रहे थे। आज आज जो आपने प्रैक्टिस की डे 13 की, अपने ड्रीम्स आपको भी मिले नहीं है और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे थे। ठीक है, दैट वाज अ बिग थिंग कि आपको ड्रीम मिल जाओगे। ड्रीम में क्या होता है, लॉट ऑफ इमोशंस आर अटैच्ड। कैसे, बिलो द लाइन इमोशंस होते हैं और अबव द लाइन के भी इमोशंस होते हैं। या आप चिंता भी कर सकते हो, अरे वो उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, बहू कैसी आएगी, दामाद कैसा होगा, मार्क्स कैसे आएंगे, घर कैसे मिलेगा, लोन कैसे क्लियर होगा। तो क्या होता है, मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं जनरली। इसीलिए आज से हम अपने फ्यूचर की चीज़ों के लिए जो थैंकफुल होने जा रहे हैं, वो छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सुबह जब अपने दिन के लिए, पूरे दिन के लिए पहले से ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, जो चीज़ नहीं हुई है ना, योर डे हैज़ जस्ट बिगन इन द मॉर्निंग, यू गॉट अप, एंड दिन में कुछ भी नहीं हुआ है अभी, आपको पता ही नहीं है, ऑफकोर्स वो होने वाला है, फ्यूचर है वो, और उसमें आप पहले से ही ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। या सो यू आर सिंपली, कैसे करना है इसको, यू हैव टू सिंपली थिंक थ्रू योर प्लान्स। माने आपका कोई भी प्लान हो सकता है, आप घर पे बच्चों को पढ़ा रहे होगे, आप मे बी अपनी मम्मा से मिलने जा रहे होगे, कोई शॉपिंग जा रहे होगे, अपना नॉर्मल ऑफिस वर्क कर रहे होगे, नॉर्मल कुछ भी रूटीन होगी आपकी,
उसमें भी क्या करना है आपको, पहले से ही आपको पता होता है ना, नॉर्मली वी नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यू नो यू आर गोइंग टू टेक अ बाथ, यू विल वर्क आउट, योर हेल्थ विल कम, यू विल मे बी सी और मैनेज द हाउस, या आप ऑफिस जाओगे, शाम का खाना होगा घर पे, वी जनरली नो हाउ आवर डे इज, या तो शी इज़ टेलिंग अस, उसके लिए अगर हम पहले से ही सोच के सिर्फ थैंक यू बोल दें, किस चीज़ के लिए, कि थैंक यू कि मेरा दिन आज एकदम अच्छा था, थैंक यू कि हम ऑफिस गए तो एकदम नॉर्मल स्मूथ हैप्पी डे था, हाँ, और उसमें लगता है सिर्फ हमको थोड़ा सा टाइम, पूरा प्लान आप, इट इज़ नॉट दैट वी हैव 30-40 थिंग्स टू डू, पूरे प्लान के लिए ही, पूरे दिन के प्लान के लिए हम पहले से ही अगर थैंक यू बोल दें तो क्या होएगा, हमारा पूरा दिन अमेजिंग होएगा। क्यों होएगा? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज व्हाट वी गिव इज व्हाट वी विल अट्रैक्ट, what we are giving thanks for a wonderful, exciting, lovely, magical day, and that is what we will get. Yeah, so she's telling us when we are giving thanks for a magical day, we will receive experiences that are going very well. Okay, so let's read how we do that. Yeah. Yes, Vanna ji, are you there? Please, sir. I can't see. You have to raise it. Yeah. Yeah, I am there. Yeah, please read. Can you hear me? Yes, we can hear you. Everyone can hear her, na? If you don't believe, you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day, and one thing after another went wrong, until by the end of the day you were as though the bad day happened by accident, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. Yeah, Vanna ji, I think there is some network issue. सबको लग रहा है कि सिर्फ मेरे को लग रहा है? Yes, there is network challenge. Yes, there's a network challenge. Yeah. So Vanna ji, what you do is you please let's do some gratitude for a proper session. आप यहाँ से पढ़ो. Well, the only reason you had a bad day, let's read from here. Okay. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you. Your bad mood. And it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. तो हमने ये सीक्रेट मूवी में भी देखा था कि जब वो लेडी लेट से उठती है, वो थोड़ी हैसल रहती है, और पूरा दिन उसका उसी टाइप का हो जाता है, वो अपना मस्कारा लगा रही होती है तो वो उसके ऊपर गिर जाता है, उसकी स्टॉकिंग्स में वो टीयर आ जाता है, एंड एवरीथिंग गोज रॉन्ग। तो हमारे संग भी ऐसा हुआ है कि आप कभी लेट से उठे हो और आपने देखा है कि लेट से उठे हो और आयरन भी करना पड़ रहा है कभी टॉप को, या उसकी बटन टूट गई है, उस पर कुछ गिर गया है लास्ट मोमेंट पे, कभी आप ऐसा हुआ है आपके संग, और आप घर से निकले भी हो तो पता चला फाइल ही घर में छूट गई है, या हैज इट हैपेंड विद यू? या आप कभी अपने बच्चों को तैयार कर रहे हो स्कूल जाने के लिए, यू गॉट अप लेट एंड देन द किड इज ऑल्सो वेरी एक्टिव दैट डे, शी डजंट वांट टू गेट रेडी, एंड वो उसको खाना भी नहीं खा रही है और उसकी बस क्या स्कूल का टाइम भी हो गया है। आई एम श्योर सबके संग ऐसा हुआ है। तो ऐसा इसीलिए हुआ होता है बिकॉज वी स्टार्ट इट ऑन अ बैड नोट एंड वी कीप ऑन अट्रैक्टिंग द बैड नोट, वी कीप ऑन अट्रैक्टिंग बैड सिचुएशंस एंड बैड इवेंट्स, एक के बाद वैसी ही चीज़ें होती चली जाती हैं। तो शी इज़ टेलिंग अस ऐसा इसीलिए होता है कि हमने जो अपने जिस मूड से अपने डे को स्टार्ट किया, इट कुड बी अ गुड मूड और इट कुड बी अ बैड मूड। अगर बैड मूड रहता है तो एक के बाद टिल द टाइम वी चेंज आवर थॉट्स, टिल द टाइम वी चेंज आवर फीलिंग्स, तब तक वो वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट होते रहेंगे हमारी लाइफ में। बट नाउ वी नो इफ़ वी चेंज आवर फीलिंग, इफ़ वी चेंज आवर थॉट, we can change that bad day and convert it into a good or a normal day. ये आपको ये अब ये समझ जाना चाहिए कि जैसे ही आपको लगा कि कुछ कुछ सामान गिर गया है तो इट इज़ लाइक अ सिग्नल कि कुछ गड़बड़ हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा मूड ठीक नहीं था, हमारी फीलिंग ठीक नहीं थी। तो उस समय तुरंत हमको 2 मिनट या 1 मिनट पॉज लेके अपने मन में कुछ अच्छी चीज़ याद करनी है या कुछ डीप ब्रेथ्स करके अपने आप को शांत करना है, तभी उसके बाद वापस दिन चेंज होएगा, वरना पूरा दिन वैसे ही बैड स्ट्रीक जैसा चलने लगेगा। So she is telling us, observe how it has been for you. If you have felt it often, मतलब आपने अपना मूड चेंज नहीं किया and you kept on by default वो बैड चीज़ें आती चली गई। So now we know कि हमको अगर ऐसा हमारे संग हो रहा है तो हमको क्या करना है। We immediately have to change our thoughts and immediately that day or the situation will also change.
Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you're doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. Hmm. The magic rock practice at night, combined with count your blessings every morning, sets your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you're feeling good before you go off into your day. या तो आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आप रात में गुस्से में सोए हो, ठीक है, हस्बैंड से कुछ फाइट हो गई है, मम्मा ने डांट दिया या बच्चों ने कुछ बोल दिया है, दे वांट समथिंग एंड यू हैव नॉट एग्रीड, तो यू आर इन अ मेंटल थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके लिए, एंड व्हेन यू गो ऑफ टू स्लीप लाइक दैट, क्या होता है, आपको मे बी स्लीप भी ठीक से नहीं आती, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, कुछ सपने भी आ सकते हैं, एंड यू आर वेरी रेस्टलेस, टॉसिंग टर्निंग, हाँ, और आप जब सुबह भी उठते हो तो आपके मन में सबसे पहले वही थॉट्स आ रहे होते हैं। तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम सुबह बैड थॉट में उठते हैं तो वो भी इसीलिए होता है क्योंकि अपन सोए नेगेटिव थॉट्स के संग हैं। हाँ, मेरे संग तो इस बुक के पहले बहुत होता था, किसी ने कुछ बोल दिया, रात भर सोच रहे हैं, ये है वो है, ज़्यादा हो तो सैड मूवी देख लेते थे, कोई सैड सॉन्ग सुन लेते थे, तो लाइक यू आर नर्चरिंग दैट सैडनेस एंड नेगेटिविटी, या उसको हम रात भर पका रहे हैं खीर की तरह, ठीक है, उसको रात भर हम वी आर जस्ट लेटिंग इट सीप इनटू ईच एंड एवरी सेल। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम उठेंगे कैसे, उसी मूड में, उसी टोन में कि यही करने आए हैं कि हम इस दुनिया में, खाना पकाओ, ऑफिस जाओ, घर के बच्चों को देखो, हाँ, या यही रूटीन है, सेम उठो, एक्सरसाइज करो, नहाओ दो, काम पे जाओ, क्लाइंट्स की बातें सुनो, यही सोच रहे होते थे। नाउ मैजिक रॉक प्रैक्टिस जब हम रात में करके सोते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छे मूड में सो रहे हैं, हम लोग दिन भर की अच्छी बातों को याद करके, ग्रैटिट्यूड करके सो रहे हैं, एंड यू फीलिंग सो नाइस। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हु आर डूइंग द मैजिक रॉक प्रैक्टिस, आप थोड़ा काम एंड नाइस मूड में सोते हो। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट कि आप जब आप सोते हो मैजिक रॉक प्रैक्टिस करके, यू आर थिंकिंग द नाइस थिंग, क्योंकि बोला गया है, Yes. या Yes. आई ऑल्सो फील Yes, yes. कि मैंने बाय डिफॉल्ट अब हम लोग I also. चीजें सोचने लगते हैं दिन की, या तो अगर कुछ भी नहीं, आपका दिन बहुत भी माने आपके हिसाब से बहुत भी गंदा हुआ है, तो भी आप देखिए, आज हम लोग सब लोग बैठ गए हैं, घर पे बैठे हुए हैं, या आप घर जा रहे होगे, आप सेशन सुन रहे हो, मतलब आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, यस, इलेक्ट्रिसिटी है जिससे आपने अपना फ़ोन चार्ज किया है, लाइट ऑन करके हम लोग बैठे हुए हैं, वी आर सो ब्लेस्ड। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इन चीज़ों के लिए भी हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। सो बिफोर स्लीपिंग यू कैन बी सो ग्रेटफुल दैट यू आर चेंजिंग योर मूड, या कि आपके पास एक बेड है, कितने जन तो नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं, आपके बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ही नीचे खड़ा हुआ है गर्मी के अंदर, राइट, या कभी ठंडी होती है तो वहाँ ठंड में खड़ा होता है, एंड यू आर सो ब्लेस्ड दैट यू हैव अ बेड, यू आर स्लीपिंग। आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करना है, यही सोच लीजिए, याद है कैसे हम लोग को रात रात भर बैठ के पढ़ाई करना पड़ता था क्लास 10 क्लास 12 में, यस, सो वी आर सो ब्लेस्ड, वी कैन थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हेन वी आर गोइंग ऑफ टू स्लीप। हमने अच्छे से पेट भर के खाना खाया है, या अगर आप डाइट भी करे हो तो भी कुछ ना कुछ तो खाया है आपने, मैंगो खाया है आपने, यस, सो देयर सो मेनी थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप। सो रॉन्डा बर्न कह रही है, जब हम अच्छे थॉट्स में सोते हैं और सुबह उठते हैं, और सुबह उठते ही क्या करना है हमको, सबसे पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स, फिर आप अच्छी चीज़ों को याद कर रहे हो, जैसे ही हम फिर से अच्छी चीज़ों को याद करते हैं, अगेन आर मूड इज लिफ्टेड, वी थिंक ऑफ थिंग्स, हाँ ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड बाकी है। तो शी इज़ टेलिंग अस, व्हेन वी आर स्लीपिंग विद गुड थॉट्स and we are getting up with good thoughts, yeah, then what is happening, we are automatically setting the tone of the day, या तो हमारा पूरा दिन अच्छा ही शुरू होने वाला है। और उसके संग जब हम ये वाली प्रैक्टिसेस करने लगेंगे, हैव अ मैजिकल डे, जिसमें हमको बोला जा रहा है कि पूरे दिन के लिए भी हमको ग्रैटिट्यूड करना है पहले से ही, तो हमारा डे डेफिनेटली मैजिकल होगा। एक और चीज़ आप देखिए, हमको सोने के पहले क्या करना है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अभी तो हम लोग ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, बट अभी उस एक और चीज़ आपको ऐड कर लेनी है उसके अंदर, फॉरगिव एंड फॉरगेट, कि कोई भी चीज़, अगर क्या हो गया अगर हमने पहले सॉरी बोल दिया, ठीक है, क्या हो गया अगर हमने थोड़ा सा लेट गो कर दिया, कि वाई शुड आई बी होल्डिंग ऑन टू सो मैनी थिंग्स, ना, जो बीत गई सो बात गई, वी ऑल हर्ड दिस, बट हाउ मेनी ऑफ अस डू एक्चुअली फॉलो इट, टेल मी, हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फॉलो इट, आप क्या करते हो, हाँ, नहीं पहले उसने बात नहीं की फिर हम नहीं करेंगे, कितना किडिश है ये। अब हमको लगता है 2 साल पहले नहीं लगता था, आई वुड ऑल्सो होल्ड ऑन टू एवरीथिंग, कल उसने कहा था कि हमको फ़ोन करेगी, नहीं किया उसने, हाँ, दीदी ने ऐसा बोला, सिस्टर ने ऐसा बोला, मम्मा ने ऐसे बोला, भाई ने ऐसे बोला, सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख लेते थे। क्लाइंट ने कहा था फ़ोन करेंगे, किया नहीं, हम भी अब नहीं करेंगे, एवरी लिटिल थिंग वुड बी स्टक हियर।
तो वो चीज़ें जो स्टक रहती हैं, अगर हम मैजिक रॉक भी कर रहे हैं तो भी उनको तो भी बाहर निकालना है। उनको कैसे निकालेंगे? क्या उनको निकालेंगे फॉरगिव एंड फॉरगेट करके। अगेन आई विल शेयर विद यू, माई सिस्टर वॉज द वन हु टोल्ड मी कि दीदी उन चीज़ों को भूल जाइए जो आपके लाइफ में 5 हफ्ते, 5 महीने, 5 साल तक मैटर नहीं करने वाली। फॉरगेट देम, फॉरगिव देम। हाँ, विल इट मैटर कि गाड़ी लेट से आई, घर में गाड़ी यूज़ हो रही थी, आपके पास लेट से आई, इज इट इम्पॉर्टेंट? विल यू रिमेंबर दिस आफ्टर 5 years? आई वॉज थिंकिंग नहीं, कभी नहीं याद रहेगा, ये सिली सिली चीज़ें अभी खाली याद रखें। तो बोली उनको भूल जाइए। एंड ट्रस्ट मी, हम हर सेशन में भी ये याद करते हैं, और दिन में भी कुछ कितनी बार होता है ना, कितनी बार नहीं, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आई ट्राई एंड फॉरगेट, आई ट्राई, इट इज़ ऑलवेज अ प्रैक्टिस। या वी आर ऑल लर्निंग, वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग। तो आप देखो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप होल्ड ऑन करके रखे हुए हो, लेट देम गो, लेट देम गो। ठीक है, दैट इज़ व्हेन वी विल बी स्लीपिंग पीसफुली एंड विल बी गेटिंग अप पीसफुली। Yes, so this is what Rhonda Byrne is also telling us, that we have to think of things to be grateful for. Yeah. Just one second. Yeah, please read. To have a magical day, you need to feel good. Yeah, please read. Okay? Yeah. To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees you to put you in a good mood almost instantly. Yeah. So she's telling Whatever us. your plans are for the day to day. Just one second, Vandaji. She's telling us to have a magical day, you need to feel good. उन्होंने नहीं ये बोला you want to feel good, उन्होंने बोला you need to feel good। मतलब ये इसका क्लॉज है। क्या क्लॉज है? कि अगर हमको अपना दिन मैजिकल करना है तो हमको सुबह सुबह अपने आप को फील गुड में करना ही है। माने लाइक यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू फील गुड। आप रो रहे हो, सैड हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, चिंता कर रहे हो, तो मैजिकल डे होएगा? नहीं होगा। हम जैसी फीलिंग्स एनर्जी एमिट करेंगे वैसा ही दिन को अट्रैक्ट करेंगे। जब आप चिंता कर रहे हो तो कि पता नहीं कहीं डीजल नहीं खत्म हो जाए, कहीं टायर नहीं पंचर, यू आर लेट फॉर अ मीटिंग और आप लेट हो, आप एंक्शियस हो कि आप टाइम पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, तो क्या होता है? आपको सारे रेड लाइट्स मिलते हैं, ट्रैफिक भी मिल जाता है। मेरे संग ऐसा बहुत हुआ था बिफोर दिस बुक, क्या बहुत ही बार होता था, आई फील आई एम रनिंग लेट, पता नहीं क्या होगा। एंड सारे सिग्नल्स मिल जाते थे उसी समय, डीजल या फ्यूल भी डलाना पड़ता था। अगर कैब में जा रहे होते तो कैब नहीं मिलती थी। दैट इज़ हाउ इट वुड बी। तो शी इज़ टेलिंग अस कि अगर हमको अपना दिन अच्छा करना है तो फर्स्ट क्लॉज है दैट वी नीड टू फील गुड। एंड शी इज़ टेलिंग अस और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है विच विल गारंटी गुड मूड इंस्टेंटली एक्सेप्ट ग्रैटिट्यूड। तो आपको क्या करना है? सुबह सुबह जो हम ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट? ग्रैटिट्यूड। जो मैजिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस थी वो क्या थी? इट वॉज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड। और अगर हम आपको अपना पूरा दिन मैजिकल करना है, अमेजिंग करना है, फैंटास्टिक करना है, फुल ऑफ गुड न्यूज़ करना है, तो हमको सुबह से ही ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, उससे हमारा मूड अच्छा हो जाएगा। सेकेंड, हम जो चाहते हैं, जैसा दिन चाहते हैं, वो पूरा वैसा होने लगेगा। ओके, सो लेट्स सी। Whatever your plans are for the day to day, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school or buying groceries, turn today into a magical day by saying the magic words, thank you, for each plan going well, before you live it. If you're a person who writes daily lists of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. तो वो कह रही है हमारा जो भी प्लान हो कल का, ठीक है, कोई भी प्लान हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप मीटिंग में जा रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, आप बच्चों को रेडी कर रहे हो, अगर स्कूल्स खुल गए हैं तो आपके घर में गेस्ट रुके हुए हैं तो वो उनका कुछ प्लान है, आप शॉपिंग जा रहे हो, आप अपने लिए कुछ आपका अपॉइंटमेंट है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो या आप सिंपली ड्राई क्लीनिंग के कपड़े भी दे रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप घर साफ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शी इज़ टेलिंग अस हम उस दिन को अमेजिंग कर सकते हैं, उस एक्टिविटी को अमेजिंग करते हैं जस्ट बाय सेइंग थैंक यू बिफोर वी आर एक्चुअली डूइंग इट। ठीक है, तो क्या करना है हमको? शी इज़ टेलिंग अस अगर आप लिस्ट बनाते हो तो जैसे लाइक आई हैव ऑलवेज मेड लिस्ट कि हाँ इतने बजे मतलब इतने बजे उठना है। इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस विद मी, अभी भी ऐसे ही है। आई गेट अप एट दिस टाइम, वर्कआउट, बाथ,
पूजा, ब्रेकफास्ट एंड लीव, बिल्कुल ऐसे ही मेरा एकदम सेट रहता था, 1.5 का ना, ऐसे ऐसे एवरी डे आई वुड राइट इन पेंसिल। हाँ, तो शी इज टेलिंग अस अगर आप अपने डेली काम की कोई लिस्ट बनाते हो तो भी, और अगर नहीं बनाते हो तो भी हम मन में भी इसको कर सकते हैं। क्या करना है, इट्स लाइक व्हेन यू गेट अप एंड यू आर गेटिंग रेडी, ब्रशिंग योर टीथ, अगर आप उस समय ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो तो आप मन में ही उसका बेस्ट रिजल्ट सोचना है। अब बोलोगे ड्रॉपिंग ऑफ ड्राई क्लीनिंग में भी बेस्ट रिजल्ट, यस उसमें भी हो सकता है। हाँ, आपने कपड़े धुलने के लिए दिए हैं, आपको चाहिए है मे बी फ्राइडे या सैटरडे, और वो कह रहा है 10 डेज बाद, तो व्हाट इज मैजिकल कि जिस दिन आपको चाहिए है उसी दिन मिल जाए, यस और आप जो सोच के बोल रहे हो उस डेट से पहले मिल रहा है आपको, प्लस आपको वो भी हो रहा है, कुछ डिस्काउंट भी मिल जा रहा है, दैट वुड बी अ मैजिकल डे। या सो इफ यू आर क्लीनिंग योर हाउस और फटाफट क्लीन हो गया, आपने म्यूजिक लगा लिया, आपके कोई हेल्प भी आ गई आपको हेल्प करने के लिए, दैट इज अ मैजिकल डे फॉर यू। इफ यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग, वेदर इट्स सब्जी खरीदने जा रहे हो कि आप कुछ सामान मंगा रहे हो, कोई स्वीट्स खरीदने जा रहे हो, जो आपके लिस्ट में है वो आपको मिल जाए और अच्छा फ्रेश नाइस मिल जाए, सो दैट इज मैजिकल। तो शी इज टेलिंग अस जो भी हमारा काम है उसका बेस्ट आउटकम सोच के, हाँ, हमको पहले से ही उसके लिए थैंक यू करना है। शी इज टेलिंग अस व्हाट एनी एक्टिविटी एज द बेस्ट एज इट कुड हैव बीन। आप मीटिंग में जा रहे हो, मे बी आप कोई प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या समथिंग, और आपको वो मिल गया, दैट वुड बी द बेस्ट एट योर प्राइस, तो उस चीज़ के लिए हमको पहले से थैंक यू करना है। या सो वील रीड अबाउट सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो, लेट्स सी। When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your day, your days start to have a magical flow about them, and things seem to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. या तो आप देखो कि कभी आप कुकिंग कर रहे हो और सुबह सुबह उसी समय सिलेंडर खत्म हो जाता है, कभी हुआ आपके संग, एंड यू आर इन अ रश, उसी समय आपने देखा, उसी समय सामान गिर गया, आपने रोटी बनाई, मे बी रोटी जल गई, दाल गिर गई, बॉयल होके दूध गिर गया, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले से बोला ही नहीं कि आज एकदम स्मूथ काम हम गाना सुनते हुए डांस करते हुए कुकिंग करें। हाँ, तो शी इज टेलिंग अस जो हमारा बेस्ट आउटकम होता है, हम उसके लिए पहले से अगर ग्रैटिट्यूड कर देते हैं तो ये जो छोटी छोटी स्पीड ब्रेकर्स आते हैं वो सब स्मूदन आउट हो जाते हैं, एकदम स्मूथ हाईवे की तरह रोड हो जाती है। सो शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड एंश्योर्स दैट क्या कि ये जो मेरा पूरा दिन है उसमें जो भी आप काम करने वाले हो उस सब के लिए अगर हम पहले से ही उसका आउटकम सोच लें, उसका रिजल्ट सोच लें कि एंड रिजल्ट कैसा होगा, तो वो दिन एकदम अच्छे से हो जाएगा। एवरीथिंग विल गो योर वे। कि आप रोड पे जा रहे हो, आपको सारे ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है, रास्ता खाली, आप आराम से एंजॉय करते हुए जा रहे हो, और आपने कभी नहीं सोचा कि सिटी में ऐसा हो सकता है, बट ऐसा ही आपने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। कि चीज़ टेलिंग अस ना कि बिल्कुल ऐसे ही होता है कि व्हेन यू आर वांटिंग टू टेक अ प्रिंट आउट इन जल्दी यू वांट अ प्रिंट आउट, तो आप देखोगे प्रिंट आउट भी नहीं निकलता। आज ही सुबह सुबह मेरे संग ऐसे हुआ था, ठीक है, आई वांटेड टू टेक अ प्रिंट आउट एंड हो ही नहीं रहा, 10 मिनट्स लैपटॉप केप्ट सेइंग प्रिंटर इज ऑफलाइन। अब वो क्यों हो रहा है, इतना मैंने ग्रेटिट्यूड दिया लेकिन प्रिंटर ने प्रिंट आउट नहीं दिया, तो नहीं दिया, ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं कर रहा है ये प्रिंट आउट। एंड एवरी डे इट वुड डू मतलब क्या, इट वुड प्रिंट, और आज प्रिंट आउट ही नहीं निकल रहा था। सुबह माई ब्रदर वॉज लीविंग फॉर द एयरपोर्ट, बोला कि दे दो, इट विल बी फास्टर, एंड आई वाज लाइक यस, एंड आई वॉज ट्राइंग टू टेक अ प्रिंट आउट, आई डोंट नो वाई, अभी मेरे को सेशन के बाद देखना है क्या हुआ क्या है, तो ऐसे हो रहा था। तो बट आई थॉट नहीं आई हैव टू स्टे काम, एंड थैंकफुली माई ब्रदर वाज लाइक ओके ठीक है कोई बात नहीं, आई विल टेक इट आउट फ्रॉम देयर, होता है वहाँ पे, बट आई वॉज कि नहीं चलो कर देते हैं प्रिंट आउट, क्यों तुम वहाँ पे एक्स्ट्रा 5 मिनट्स लगाओगे, लेट मी ओनली डू इट, नहीं हुआ। तो शी इज टेलिंग अस अगर हम पहले से ही कोई चीज़ का आउटकम सोच लेंगे तो हर चीज़ ईजीली स्मूथली पूरा दिन हो जाएगी विद मोर जॉय, विद फार मोर जॉय। माने हम जो नॉर्मल काम भी करते हैं वो भी एकदम स्मूथली हो जाते हैं, कि आप लिखने गए, आप चेक पे साइन करो, उसी समय खत्म हो जाए। व्हाट इज दिस, इज इट गोइंग स्मूथ और इज इट नॉट गोइंग स्मूथ? Yeah, so each and everything that we are doing when goes, it goes smoothly if we are saying about the best result beforehand and with gratitude. Yeah. Yes, Vandana ji, please read. When I first began to use gratitude,
When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of the time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. Yeah, so she is very The straight. result of gratitude's magical power was that I Yeah, got a Vandana parking ji, just one space second. right at the door. Just 1 second. We'll just discuss it, after each paragraph, and then we will start the next paragraph. Yeah. तो शी इज टेलिंग अस उनको जो नहीं अच्छा लगता था सबसे पहले उन्होंने ये प्रैक्टिस उसी में यूज़ की। या तो वो वैसे भी करती थी और उसमें से एक चीज़ थी जो उनको एकदम नहीं अच्छी लगती थी। तो अब आप सोचिए आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करने के लिए नहीं मन होता है। मे बी सेटलिंग द वार्डरोब, फोल्डिंग द क्लोथ्स, कीपिंग द क्लोथ्स इन द वार्डरोब। ये भी तो एक रोज रोज का एक टास्क होता है ना। हाँ, तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं तब क्या करना है आपको, उसके लिए भी पहले से ही बोल देना है थैंक यू फॉर द ईजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपर मार्केट। अब आप यहाँ देखिए वो क्या कह रही हैं। शी कुड हैव जस्ट सेड थैंक यू फॉर द ट्रिप टू द सुपर मार्केट। यहाँ पे हम लोग ने बचपन से जो ये चीज़ें सीखी हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। एग्जैक्टली आपको एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं। कैसे? जैसे हमको वो आउटकम चाहिए, जैसे वो जो आप काम या एक्टिविटी करने जा रहे हो जैसा आउटकम चाहिए उसके बारे में वही आपको चीज़ बोलनी है। अगर आप चाहते हो थैंक यू फॉर द बेस्ट डील ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, जो आपको चाहिए प्रॉफिटेबल डील जैसी चाहिए आपको वैसे ही उसमें एडजेक्टिव यूज़ करके बोलना है, ठीक है। एंड शी इज टेलिंग अस उनको कोई आइडिया भी नहीं था कि कोई सुपरमार्केट की ट्रिप ईजी एंड जॉयफुल कैसे हो सकती है, बट शी वांटेड इट दैट वे और उन्होंने उसके लिए पहले से ही ये बोला। एंड शी इज टेलिंग अस शी फेल्ट एज मच ग्रैटिट्यूड फॉर द आउटकम एज आई कुड। माने उनको नहीं पता है कि कैसे वो चीज़ अच्छी होगी, है ना। इट कुड बी कि आपको बच्चों के पीटीएम में जाना है, इट कुड बी दैट आपको बच्चों को लेके कभी कोई वैक्सीनेशन के लिए जाना है या कोई एनीथिंग जो हमको नहीं पसंद है उसको भी वो कैसे जॉयफुल एंड ईजी बनाती हैं। और उन्होंने क्या किया, उनको पता नहीं है कैसे होगा। शी हैज जस्ट सेड दैट आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई डे ट्रिप टू द सुपर मार्केट इज जॉयफुल एंड ईजी। सो लेट्स रीड हाउ शी डिड दैट। The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special. And as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new aisle opened and the checkout person signaled me to them. Yeah, sorry, from here. As the checkout. Yeah. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue she asked, "Do you need any batteries?" It was one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magic. या तो अब देखिए क्यों उनको सुपरमार्केट की ट्रिप अच्छी नहीं लगती थी पहले, क्योंकि शायद उनको ढूंढना पड़ता था अपना सामान, उनको लगता था ये टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, इतने सारे ऑप्शंस होते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको लाइन में वेट करना पड़ता होगा बिलिंग के लिए, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस, और या उनको पार्किंग नहीं मिलती होगी। तो अब आप देखिए उन्होंने किया क्या, शी जस्ट सेड थैंक यू फॉर द ईजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू माई सुपर मार्केट। या मेरे को तो वैसे भी जॉयफुल लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एक्सेप्ट वो लाइन वाली बात छोड़ के। एंड शी इज टेलिंग अस कि उनको पता ही नहीं है कैसे होगा, बट उनका डे एक्चुअल में ही वैसे स्टार्ट हो गया। उनको पार्किंग मिल गई, उनको अपनी फ्रेंड मिल गई, और उन्होंने लंच भी कर लिया शॉपिंग करने के बाद, दूसरी फ्रेंड मिल गई, और जो उनको चाहिए था उसके बारे में, जैसे नहीं बातों बातों में आपको कोई पता चल जाता है रेफरेंस, वो मिल गया। जो वो सामान भूल जा रही थी वो उनको कैशियर ने याद दिला दिया, उनके लिए वो लाइन न्यू बिलिंग काउंटर खुल गया। सो एंड हर डे वॉज एक्चुअली मैजिकल। आप देख रहे हो कैसे किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, सिर्फ उसके पहले बोला कि थैंक यू फॉर द मैजिकल ईजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपर मार्केट। या एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक, लेट्स सी। It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day.
by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. या तो पूरे दिन का आपको क्या करना है, थोड़े से टाइम के लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है, बट हमको पता होना चाहिए जो नॉर्मल चीज़ें जो हमको पता है हम करने वाले हैं उनके लिए तो हम पहले से ही कर सकते हैं। जो सडनली चीज़ें आ जाती हैं उनके बारे में नहीं पता, उसके बारे में भी हम लोगों को आगे प्रैक्टिस पता चलेगी। बट शी इज़ टेलिंग अस इस प्रैक्टिस से पूरे दिन का हम पहले से ही आउटकम सोच लेते हैं तो पूरा दिन अमेजिंग हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा ना, हैव अ मैजिकल डे, हमको सिर्फ सुबह में थोड़े टाइम के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, उसका बेस्ट आउटकम सोचना है, एंड दैट इज हाउ द डे विल बी। या To have a magical day, when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you're showering or getting dressed, think about the plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you plan for in the morning, afternoon, you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you're saying thank you at the end of the day and you're immensely grateful because it did go brilliantly well. या तो क्या करना है कि कल सुबह जब हम उठेंगे इस प्रैक्टिस के लिए, शी इज टेलिंग अस व्हेन यू वेक अप टू द न्यू डे। कभी हमने ऐसे बोला है व्हेन यू वेक अप टू द न्यू डे? हम लोग सिंपल यही बोलते हैं व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, प्लीज डू दिस, प्लीज डू दैट। या तो शी इज टेलिंग अस ईच डे इज अ न्यू डे। वो हम उसका टोन सेट करते हैं कि वो दिन कैसा जाएगा बाय चेंजिंग आवर एटीट्यूड। And into what? We have to change our attitude and turn it into gratitude, and that is how the day will be. It will has to be full of gratitude. करना क्या है, पहले से ही हमारे मन में एज यू शार और एज यू आर गेटिंग रेडी हमको हमारे दिन का नॉर्मल प्लान पता ही होता है, या तो उसके बेस्ट आउटकम के लिए मन मन में सोचते जा रहे हैं और थैंक यू बोलते जा रहे हैं। या विद ईच प्लान और इवेंट से द मैजिक वर्ड्स एंड इमेजिन दैट यू आर सेइंग थैंक यू। माने आप सोचो आज का दिन है, आप मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हो तो आप क्या बोल रहे होते हो, है ना? थैंक यू फॉर द लवली ब्रेकफास्ट, थैंक यू फॉर द गुड मीटिंग, थैंक यू फॉर माई कॉन्वर्सेशन विद माई मॉम, थैंक यू फॉर द डिस्काउंट दैट यू गॉट एट द शॉपिंग। आप उन सारी चीज़ों के बारे में आप मैजिक रॉक को बोल रहे होते हो। तब आप सोचो वो सेम चीज़ें आप पहले ही सुबह से बोल दिए, ठीक है? इट्स लाइक सुबह आप उठे, आपने देखा कि आज आपको ब्रेकफास्ट पे कहीं जाना है या घर पे कोई आ रहा है या जो भी आपका प्लान है उसका बेस्ट आपने पहले से ही सोच लिया और उसके लिए थैंक यू बोल दिया। जैसे लाइक आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल, टुमारो I have to go to office in the morning, then I have a meeting at 3 o'clock, I have a site visit after that, then I'll come home and probably go out with my sister and my niece, nephew and my mom. तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे सुबह उठेंगे, थैंक यू फॉर द वंडरफुल ब्रेकफास्ट दैट वी हैड टुगेदर, इट वॉज फुल ऑफ लाफ्टर, इट वॉज सो मच फन, ठीक है? थैंक यू फॉर द प्रोडक्टिव डे एट ऑफिस, ऑल द डिजाइंस वर अमेजिंग। या थैंक यू फॉर द वंडरफुल साइट विजिट विद क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग वॉज अप्रूव्ड। माने हमको जो हम चाहते हैं उसके लिए हमने सुबह से ही मन में थैंक यू बोल दिया कि हम साइट पे गए, इट वॉज सो कूल एंड ब्रीजी। अभी मेरी टेरिस की साइट है तो व्हेन आई गो एंड आई हैव टू से वाओ सन यू आर सो ब्राइट एंड शाइनिंग, अभी मेरे को ऐसे करना पड़ता है, वाओ ह्यूमिडिटी यू आर सो कूल, हाँ मस्त ह्यूमिडिटी, हमने बोला ना ऐसे बोलना पड़ता है। तो नाउ आई विल से थैंक यू, द टेरिस साइट विजिट वॉज सो कूल एंड ब्रीजी, हाँ आई होप इट डजंट रेन। नाउ हमने ऐसे बोला, मेरे को लग रहा है कि हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। एनीवेज तो हम पहले से ही सारी चीज़ें बोल रहे हैं। थैंक यू फॉर द डिलिशियस यमी एंड चेयरफुल डिनर दैट आई हैड विद माई फैमिली। तो हर चीज़ हम पहले से ही उसका बेस्ट आउटकम सोच के हमने सुबह ही सब बोल दिया। तो इज इट क्लियर आपको क्या करना है? एंड संग में यू आर इमेंसली ग्रेटफुल बिकॉज इट डिड गो ब्रिलियंटली वेल। माने हम मन से दिल से ये चीज़ों के बारे में थैंकफुल हो रहे हैं। या सो लेट्स रीड। You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we've ever had. या तो शी इज टेलिंग अस जितने ज़्यादा आप ये सुपरलेटिव्स माने आप बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो उनको यूज़ करिए एंड फील मोर ग्रेटफुल। आप देखिए ना, अगर हमने सिंपली बोला थैंक यू फॉर द गिफ्ट,
आप थैंक यू बोल रहे हो, आपको गिफ्ट मिला है, कैसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। सेकेंड, अगर आपने बोला ओ आई एम सो हैप्पी दैट यू गॉट मी सच अ वंडरफुल गिफ्ट, कैसा लगेगा आपको? आपको ये भी लग रहा है कैसे इतरा रही है, ये भी लग सकता है, ठीक है। बट हमको ऐसे ही बोलना है, वी हैव टू यूज एज मैनी सुपरलेटिव्स। जितने ज़्यादा आप उसको और ज़्यादा आप उसको हाइटन करो, लाइक यू हैव टू टर्न अप द वॉल्यूम, ठीक है। हमने ये पावर बुक में पढ़ा था ना, टर्न अप द वॉल्यूम, तो हमको वैसे ही बोलना है। अब बोलो ये तो झूठ है, कोई बात नहीं, वी हैव टू फेक इट टिल वी मेक इट। कोई बच्चा गिरता है, हाँ हाँ, वो बच्चा एक छोटा सा सर्कल बना के लाता है, वो राउंड भी नहीं है, आप क्या करते हो? आप क्या बोलते हो, ये कोई राउंड है, ये तो ओवल भी नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलते हो ना। आप तो उसको झूठ ही बोलते हो ना, वाओ कितना परफेक्ट राउंड बनाया तुमने, तब आपको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो? नहीं लगता है ना। आप क्या कर रहे होते हो? आप उसको एनकरेज कर रहे होते हो, राइट। तो वैसे ही हमको हमारे दिन को अगर पॉजिटिव बनाना है तो वी हैव टू डू इट। आप किसी और के सामने अभी नहीं करना है, अभी तो आपको अपने मन में ही करना है ना। क्या करना है आपको मन में? आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम के लिए आपको पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं, सुपरलेटिव्स यूज़ करने हैं, और जितनी ज़्यादा आप एक्साइटमेंट हैप्पीनेस में बोलोगे उतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करोगे, और वैसे ही आप अपने पूरे दिन को अट्रैक्ट करोगे। और इससे होता क्या है, इट इज़ लाइक अ चेन रिएक्शन। आप एक चीज़ के लिए बोलोगे, दूसरी चीज़ के लिए बोलोगे, आपकी फीलिंग्स देखोगे आप चेंज होती जाएंगी। लाइक हमने आपके संग शेयर किया कि ऑफिस ऐसा हुआ, साइट विजिट ऐसी हुई, डिनर ऐसा हुआ, मेरे को ही कितना अच्छा लग रहा था। आप भी जब बोलोगे यू विल ऑल्सो फील द सेम थिंग। आप जो भी कुछ कर रहे हो, आप देखिए ना, उन्होंने कहा कि ना कैसी क्लीनिंग, उन्होंने बोला एफर्टलेस एंड फन डे ऑफ क्लीनिंग। कोई सोच सकता है कि क्लीनिंग इज ऑल्सो फन डे, एफर्टलेस होती है क्लीनिंग, आप सोचो। तो वैसे ही बोलना है उनको, ठीक है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि येस एफर्टलेस एंड फन तो लगती नहीं है, बट इफ आई एम सेइंग इट, इट विल बी लाइक दैट। मे बी मैं सफाई करूँ, कुछ कूड़ा ही ना निकले, एक बार मैंने दाग छुटाया, फट से छूट गया, दैट इज एफर्टलेस एंड फन ना। तो वैसा ही हमको बोलना है। थैंक यू फॉर द वंडरफुल नाइट आउट विद फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द अमेजिंग एनर्जी फ्रॉम माई एक्सरसाइज सेशन। कि रोज़ मेरे को एक्सरसाइज करना नहीं अच्छा लगता है, फिर भी हम उसके लिए बेस्ट आउटकम बोल के हम थैंक यू बोल रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू। एंड एक और चीज़ आपको करनी है, हर दिन आपको मोर एंड मोर सुपरलेटिव्स यूज़ करने हैं। आपको ये जो जितने भी ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, टेरिबल, ऑफुल, और भी इस टाइप के जो होते हैं ना, वाहियात, ये सारे चीज़ें आप अपने डिक्शनरी से हटा देने हमको। वी ओनली हैव टू यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स, ओके। और कल हर जन को, we'll do that tomorrow in the group, that is like something that we do in each session and it is actually a lot of fun। आप देखोगे हम लोग और पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड द मोर यू यूज़ इट, द मोर यू आर अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ। जितना ज़्यादा आप देखो वाओ, फैंटास्टिक, ऑसम, थ्रिलिंग, जितने ज़्यादा आप ऐसे पॉजिटिव हैप्पी वर्ड्स बोलोगे, वैसे ही चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। सो लेट्स रीड दिस वन सेकेंड। ये तो कह रही है जोर से ही बोलने को। लेट्स रीड। यस वंदना जी, आर यू देयर? This magical practice is more powerful. This magical practice is more powerful if you can say the magic words "thank you" out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. तो वो कह रही है हमको तो जोर से ही बोलना है, ठीक है। After you finished using gratitude's magical power for please continue, we'll discuss it। After you finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, "And thank you for the great news coming to me today." Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One day after another, pours it. Each time I have a piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I use gratitude's magical power. वंदना जी, थोड़ा सा ना नेटवर्क चैलेंज आ रहा है। I think let's discuss this, then we'll continue from here. And then okay, then we'll start again from here. So she's telling us, जब हमने अपने पूरा दिन के लिए थैंक यू कर दिया फॉर द बेस्ट पॉसिबल आउटकम
तो आप क्या करोगे, उसके बाद आपको कहना है एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे। ठीक है, आपने पूरा बोल दिया कि हाँ ब्रेकफास्ट भी अच्छा हो गया, एक्सरसाइज भी अच्छी हो गई, खाना भी हो गया, मीटिंग भी अच्छी हो गई, साइट विजिट्स भी हो गई, और सबके लिए हमने पहले से ही थैंक यू कर दिया। एंड में बोलना है एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे। दिस इज़ अ प्रैक्टिस, ये हम लोग को मन से नहीं बना रहा है, वी हैव टू डू इट। नाउ शी इज़ टेलिंग अस, ये जब से इन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू करी है, हर सुबह उनको ग्रेट न्यूज़ के लिए वो थैंक यू करती हैं, एंड दिन के बाद दिन उनको पूरे लाइफ शी हैज़ रिसीव्ड सो मैनी गुड न्यूज़। ठीक है, और ग्रेट न्यूज़ आर पोरिंग इन हर लाइफ। आप सोचो, हर दिन ग्रेट न्यूज़ आ सकती है किसी के लाइफ में। हाँ, मैं बोलता हूँ बहुत दिन बाद कोई गुड न्यूज़ सुनाओ, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना। शी इज़ टेलिंग अस शी हैज़ बीन गेटिंग गुड न्यूज़, पोरिंग इन मतलब क्या हुआ, टप टप करके नहीं आ रही, बौछार माने लाइक बहुत सारी आ रही हैं गुड न्यूज़ उनके पास में। या तो शी इज़ टेलिंग अस इट हैपेंड विद हर, इट इज़ हैपनिंग विद हर बिकॉज शी इज़ डूइंग दिस प्रैक्टिस ऑफ हैविंग अ मैजिकल डे, एंड शी इज़ एंडिंग इट बाय सेइंग एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे। माने ये सारी चीज़ हमको सुबह ही कर लेनी है। कब? एज यू आर गेटिंग रेडी, एज यू आर गेटिंग गेटिंग रेडी फॉर द डे, उसी समय हमको ये पूरी कंबाइन करके प्रैक्टिस कर लेनी है। या लेट्स रीड ईच टाइम फ्रॉम योर yes, Vanna ji, are you there? Yes, yes, I'm there. Where do you want me to read from? Each time. Okay, each time. Another piece of great news. वना जी, आई थिंक थोड़ा सा ना नेटवर्क चैलेंज है, आई थिंक थोड़ा सा ही बाकी है। आई थिंक लेट समवन एल्स रीड, जस्ट दिस पैराग्राफ इज ओनली लेफ्ट। या समवन एल्स प्लीज रीड। कुछ मैसेज I'll read. हाँ, यस। From here, after you're finished. Yeah, each time I receive from your You can read from after you have finished also, it's totally fine. हाँ, अच्छा ही रहेगा, we'll read from there. Yeah, please read. After you finish using gratitude's magical power for every task and event in your day, end gratitude by saying, thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single moment when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I'm especially grateful and excited because I know I use gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. या तो उन्होंने क्या किया, अपने दिन में सुबह जब उन्होंने अपने मैजिकल डे के लिए पूरे दिन के लिए थैंक यू किया, उन्होंने एंड में ही कह दिया एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे। एंड शी इज़ टेलिंग अस, एक के बाद एक उनके लाइफ में गुड न्यूज़ आती चली गई, लाइफ में नहीं दिन में। और जैसे ही गुड न्यूज़ आती तो बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, हम लोग क्या करते हैं, थैंक यू भगवान जी फॉर सच अ वंडरफुल थिंग, यही बोलते हैं ना अपन। तो फिर से उन्होंने क्या किया, फिर से वो चेन रिएक्शन स्टार्ट किया। वॉट शी इज़ गिविंग इज ग्रैटिट्यूड फॉर द गुड न्यूज़, एंड वॉट इज़ कमिंग, मोर गुड न्यूज़ इज कमिंग इन, बिकॉज वॉट वी गिव इज़ वॉट वी रिसीव। हम बार बार ये बोलते हैं ताकि हम लोग को ये याद रहे। ठीक है, तो आप देखो शी इज़ यूजिंग ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर। जितना ज़्यादा वो ग्रेटफुल एंड एक्साइटेड होती हैं, ठीक है, एंड क्यों हो रही है वो एक्साइटेड, क्योंकि उन्होंने अट्रैक्ट किया उस गुड न्यूज़ को। शी इज़ ग्रेटफुल एंड एक्साइटेड कि उनके ग्रैटिट्यूड से उनके लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, और वो उससे और ग्रेटफुल होती हैं और गुड न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाती है। तो शी इज़ टेलिंग अस, इफ़ यू वांट टू रिसीव मोर गुड न्यूज़ यू मस्ट फॉलो इन माई फुटस्टेप्स। क्या करना है, दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करनी है, हमारा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखना है, या एंड देन हमको गुड न्यूज़ वाली ये प्रैक्टिस करनी है, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ मैजिकल डे एंड वी विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर गुड न्यूज़। या तो कल आपका जो भी दिन है, आप सुबह ब्लेसिंग्स लिखोगे,
पहले तो उठते ही न्यू डे के लिए हमको थैंक यू करना है, और आपको पता है आपके मन में क्या है। जब तक आप ब्लेसिंग्स नहीं करने बैठ रहे हो तब तक आप इट्स लाइक टिल द टाइम यू गेट सेट एंड स्टार्ट राइटिंग योर ब्लेसिंग्स, और आफ्टर यू राइट योर ब्लेसिंग्स आपको मन में ही पूरे दिन के लिए बेस्ट आउटकम के लिए टर्न बाय टर्न आपको पूरा थैंक यू बोलते जाना है, thinking of the best possible outcome. She's telling us you can use as many superlatives as possible. माने आपको नहीं भी आता पता है फैंटास्टिक, ऑसम, फैबुलस, अमेजिंग, ऑसम, माने जो भी आप बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो, या एंड एंड में बोलना है एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग माय वे। हम क्या कर रहे हैं, पूरे दिन को हम अपने पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर दे रहे हैं, या एंड वी आर अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस एंड एनर्जी बैक। या प्लीज रीड। Magic practice number 14. Have a magical day. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, in the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words, thank you for it having gone well. Imagine that you're saying thank you at the end of the day and you're immensely grateful because it went perfectly. Third, after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical day practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. So, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो आप देखिए ये प्रैक्टिस हमसे क्या कह रही है कि हमको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, ठीक है। आप हम लोग ने ये कई बार इसके बारे में बात की है कि लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी होती है या नेगेटिविटी होती है। आपसे कितने बार आपसे किसने पूछा होगा या आपको किसी ने कहा होगा कैसी तबीयत है, हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स, ऑल राइट, सो ठीक ठाक, बस चल रहा है, आप ऐसा बोलते हो? तो अगर आप ऐसा बोलते हो तो क्या ये पॉजिटिव रिप्लाई है? अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो ये सिर्फ नेगेटिव है, ठीक है। तो आपसे आज के बाद कोई भी पूछे हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज़ योर जॉब, हाउ इज़ योर फैमिली, हाउ वाज योर ट्रिप, हाउ इज़ योर हेल्थ, हाउ वाज द फूड, आप क्या बोलोगे? अमेजिंग, ऑसम, ब्रिलियंट, टिप टॉप, ठीक है, जकास। माने ये वाले जितने भी वर्ड्स आपको आते हैं आपका आंसर हमेशा ही ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं हम वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आई विल कीप ऑन रिपीटिंग जब तक हमारे वो सेल में नहीं चला जाए, एंड ईच टाइम आई एम रिपीटिंग टू यू, इट इज़ मोर ऑफ अ रिविजन फॉर मी, या इट इज़ नॉट दैट हम सिर्फ आपको बोल रहे होते हैं, आई एम ऑल्सो टेलिंग इट टू माई सेल्फ, क्योंकि हर दिन हम लोग न्यू खड्डे भी खोदते रहते हैं ना। कौन से खड्डे? कंप्लेंट के खड्डे, उनको भरने के लिए वापस याद भी करना होता है ना। सो दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग हियर। तो क्या करना है हमको, सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलनी है। दिन कैसा चाहिए हमको, उसके लिए हमको पहले से ही ग्रैटिट्यूड करके उसका बेस्ट आउटकम सोच के हमको थैंक यू बोलना है, एंड एंड में गुड न्यूज़ वाली प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इट हैपन्स इन अ चेन रिएक्शन। जब हम अच्छे मूड में रहेंगे, खुश रहेंगे, भले ही हम अभी फेक इट टिल यू मेक इट कर रहे हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स को क्या पता चलता है? सिर्फ हमारी एनर्जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या देखता है? सिर्फ हमारी एनर्जी। अगर हमारी एनर्जी बिलो द लाइन की है, हमारी एनर्जी सैड है, एंग्री है, इरिटेटेड है, तो हमारे लाइफ में वैसे ही चीज़ें आएंगी। आपको ही देखिए ना, कोई गेस्ट, अनवांटेड गेस्ट आ जाता है घर में, तो आप क्या करते हो? आप उसको देख के मुंह तो नहीं बनाते हो, है ना। आप उसको देख के स्माइल ही करते हो, तो ये प्लीज कम, आइए, बहुत दिन बाद आए, आप ऐसे ही करते हो। चाय नाश्ता सब लेके आते हो, आपके मन में क्या हो रहा होता है? ओहो, मेरा तो पैक लगाने का टाइम था, मेरा तो ये काम करने का टाइम था, अब मुझे ये भी करना पड़ेगा, इनके सामने बैठना पड़ेगा, मेरा सीरियल छूट जाएगा। वी डू दिस, या तो व्हाट आर वी डूइंग एट दैट टाइम? वी आर फेकिंग, है ना। तो आपके मन में आता है नहीं नहीं, सच सच बोलना चाहिए, हाउ कैन वी फेक इट टिल वी मेक इट? आता है आपके मन में? नहीं आता है ना। तो अगर आपको ये बोला जा रहा है, ये बुक कह रही है कि हमको हमारी एनर्जी पॉजिटिव रखनी है तो ही हमारी ड्रीम्स मिलेंगी, उसमें आपको आता है कि अरे झूठ झूठ कैसे बोल सकते हैं हम लोग, ये क्यों आता है आपके मन में? ये एकदम भी नहीं आ रहा है। आप देखिए, आज आपने जो प्रैक्टिस की थी डे 13 की, इफ़ यू डिड इट, या आप उसको सोच रहे थे एंड यू आर फीलिंग सो नाइस, है ना। आपको लग रहा था ना कि वाओ यस, आई एम इन कश्मीर, इट इज़ सो नाइस, आई एम लुकिंग सो क्यूट इन दिस रेड कलर्ड कैप। आप ये सोच रहे होगे, ये तो हम सोच रहे थे, आप भी कुछ कुछ ऐसे ही सोच रहे होगे। हाउ आर यू फीलिंग? नाइस एंड हैप्पी, एंड ईच टाइम वी आर फीलिंग दिस नाइस एंड हैप्पी फॉर आर ड्रीम, वी आर अट्रैक्टिंग इट, वी आर कमिंग क्लोजर टू आर ड्रीम।
तो हमको वही करना है। हर दिन जब हम अपना स्टार्ट करते हैं, पहले से ही अगर हम उसके बारे में सोचने लगें, अच्छी बातें, गुड बातें, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें, वी आर सेटिंग द थिंग इन मोशन एंड वी आर अट्रैक्टिंग द हैप्पी डे फॉर अस, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ मैजिकल डे. Okay, so thank you Vandana ji, if you're there, thank you so much for reading for us, and thank you Sarika ji for taking the lead and completing the chapter. Thank you so much. So we'll do gratitude and then Yes, Priya, I'm there. Thank you. thank you. So we'll take questions and sharings कि आज आपका दिन कैसा रहा and how you did it. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's do gratitude for the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for the most amazing month of May for all of us. Thank you for the bright sunshine, the mangoes, the yummy fruits, and awesome flowers this month. Thank you for the amazing day that we had today, for the smiles, the laughter, the happiness, the air that thank you, thank you, Oh yes, thank you everyone. Thank you. Okay, so thank you for being here. Thank you so much. And now please tell me, how was today's practice? जिसने नहीं की प्लीज़ आप कर लीजिएगा, बिकॉज अगर हम अपनी ड्रीम पे ही वर्क नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं, आप बताइए ना. ऑफ कोर्स देखते हैं, बातें करते हैं, अच्छा लगता है, बट ड्रीम तो हमको चाहिए ना हमारी. यस, दैट इज़ द होल प्रैक्टिस. सो प्लीज़ 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 राइट योर ड्रीम्स. अगर आपने नहीं भी लिखा है तो अभी भी लिख लीजिए, ठीक है. क्या बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, है ना. तो आप अभी लिख लीजिए, नो इश्यूज़, कल लिख लीजिए, बट अपनी प्रैक्टिस ऑन रखिए. और हमको करना क्या है, लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है और विजुअलाइज करना है, कल्पना करना है. तो ये 5 स्टेप्स आपको याद रखनी है. दीज आर द थिंग्स इफ वी डू देन वी आर अट्रैक्टिंग आवर ड्रीम्स इन आवर लाइफ. या यस ऋतु जी, यू हैव अ क्वेश्चन. हाँ दीदी, मुझे कुछ पूछना था. हाँ दीदी, वो जो बिल्स पे हम लिखेंगे ना थैंक यू पेड, जैसे मैं हम्म. लिख रही हूँ, तो फिर वो बिल्स मुझे अपने पास रखने हैं क्या? देखिए, थोड़े दिन तो रखना ही चाहिए, ठीक है. ठीक है. फिर आप धीरे हाँ. धीरे हटा सकते हो. हाँ, इट इज ओके. लाइक बहुत सारे हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स हाँ. ये नहीं कि आपने तुरंत लिखा और तुरंत डस्टबिन में फेंक दिया, ऐसा तो नहीं करना है. ओके, हाँ ठीक है. कीप इट फॉर अ ओके कपल ऑफ डेज और वीक्स एंड देन ओनली रिमूव देम. या ओके और ओके एंड व्हाट आई डू इज कि जब हम उसको हटा रहे होते हैं तो भी उसको पढ़ लेते हैं और फिर से उस चीज के लिए थैंकफुल हो जाते हैं. अच्छा. ओके, ठीक है दीदी. थैंक यू. या थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू. एंड आई एम श्योर बाकी लोग के मन में जिनके ये क्वेश्चन आ रहा होगा उनको भी समझ में आ गया कि क्या करना है ना. ये किस प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं हम लोग? बिल के लिए मनी. यस यस, Magical मनी. या वेरी गुड. तो आप सबको करना है ये वाली प्रैक्टिस. ईच प्रैक्टिस, उन्होंने ये नहीं कहा कि आज खत्म, नहीं, हर दिन आपको सारी प्रैक्टिसेस करती रहनी है. तो आज जो आपने ड्रीम की प्रैक्टिस की है, इफ़ यू रियली वांट टू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स फास्टर इन योर लाइफ, यू वांट टू एनर्जाइज एंड यू नो बी अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट फॉर योर ड्रीम, तो आप अपनी ड्रीम की प्रैक्टिस तो रोज ही करना है आपको, ठीक है. इफ़ यू वांट यू कैन एक्चुअली राइट इट डेली. अदरवाइज जो आपने लिखी है आप उसको रोज, जो उसका सेकंड स्टेप है कि आपने किसके संग वो न्यूज़ शेयर की, आपने क्या चीज़ किया, आपने कैसे बताया, आपने क्या, ये जो 3 क्वेश्चंस थे वो वाली आपको विजुअलाइजेशन डेली करनी है. इज दैट क्लियर? या एंड कोई एक पर्टिकुलर ड्रीम को आपको 7 मिनट विजुअलाइजेशन करना है. आप अपने फ़ोन पे एक टाइमर लगाइए मैजिक रॉक प्रैक्टिस के पहले, ठीक है. जब आपका सब काम हो गया, डिनर, टॉयलेट, विंडो बंद, लाइट बंद, गेट बंद, सब कुछ हो गया है, देन यू सेट अ टाइमर ऑन योर फोन फॉर 7 minutes. डू दैट विजुअलाइजेशन, यूज योर 5 senses इन द विजुअलाइजेशन एंड डू इट एंड फील द ग्रैटिट्यूड. जितना ज़्यादा आप, जैसे उन्होंने आज बोला ना, यूज़ द सुपरलेटिव्स, यूज़ द पॉजिटिव वर्ड्स, जितना ज़्यादा आप उसमें डीप जाके ऐसी फीलिंग्स लेके आओगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी आपके ड्रीम की फ्रीक्वेंसी पे रहेगी, ठीक है. एंड देन यू आर अट्रैक्टिंग इट क्लोजर टू यू. उसके बाद मैजिक रॉक प्रैक्टिस करिए, सो जाइए, और उसके पहले जो फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली बात है वो याद रखिए कि छोटी छोटी चीज़ें, कि पार्किंग नहीं मिली, कि उसने हॉर्न ज़्यादा बजा दिया, कि उसने मेरा रास्ता काट दिया, वट एवर, उस सब को भूल के स्टार्ट अ न्यू डे, अ फ्रेश एवरी डे. या सो यस, एनीवन हैज़ अ क्वेश्चन, अ शेयरिंग? We can do this visualization in the morning also. Yes, 100%. एकदम बिल्कुल. सुबह उठते ही, नेहा जी, there's a lot After of writing the blessings. yeah.
नेहा जी, आई एम अनेबल टू म्यूट ऑल्सो, बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है। या थैंक यू। या हाँ, आप सुबह भी कर सकते हो। या सुबह तो ब्रह्म मुहूर्त में करना तो बेस्ट होता है। ठीक है, इवनिंग हम इसलिए बोल रहे थे कि अगर जिन्होंने आज नहीं की है तो अभी भी सोने के पहले आप कर लो। अदरवाइज ब्रह्म मुहूर्त में कुछ भी इस टाइप का आप करते हो, वेदर इट्स राइटिंग योर ब्लेसिंग्स, राइटिंग अबाउट योर वर्क, थिंकिंग अबाउट योर वर्क, विजुअलाइजेशन, एनी क्रिएटिव प्रोसेस दैट यू डू इन द ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट। सुबह उठ के आप शांति से करो, और अच्छा है कि अगर आप पूजा करते हो और आप उसी अच्छे वाले बिलीफ एंड फेथ वाले मोड में रहते हो, पूजा करने के बाद आप विजुअलाइजेशन कर लीजिए, वो और भी पावरफुल होता है। सो इट इज़ अप टू यू, आपको कब करना है, बट आप शांति से करिए। ये नहीं कि आपको अरे 7 मिनट खत्म ही नहीं हो रहे, ऐसे नहीं आना चाहिए मन में। ठीक है, शुरू में मेरे मन में आ रहा था 7 मिनट्स नहीं हुए, और कितना सोचना है मेरे को, दैट हैपेंड विद मी। ओके, सो आई एम शेयरिंग विद यू। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन बिल्डिंग। पहले से आप सोच लो, इसीलिए उन्होंने इतने दिन हमको बोला कि आप एकदम डिटेल में लिखिए कि आपको चाहिए क्या। इट शुड नॉट बी दैट यू हैव कम टू द सुपर मार्केट एंड यू डोंट नो खरीदना क्या है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। यस, जैसे ना अभी ये बात करते करते मुझे याद है, जब डीकैथलॉन यहाँ पे खुला था, डीकैथलॉन में तो वहाँ पे क्या हुआ था, दे वुड सेंड, ऐसा कुछ था कि थोड़ा इतने टाइम के लिए आप अंदर जाओ और जो कुछ लेना है ले लो। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दैट? वहाँ पे ऐसे था दैट जब डी हम गए नहीं, बट आई जस्ट रेड अबाउट इट कि आपको 5 मिनट के अंदर जो कुछ भी आप उठा सकते हो आप उठा लोगे, दैट इज योर्स फॉर फ्री। आई वाज लाइक वाओ, ऐसा भी होता है, आई डोंट नो, बट मैं हमने ये सुना कि ऐसे किया था उन्होंने, जस्ट एज अ प्रमोशनल थिंग। 5 मिनट या जो भी कुछ होगा, इट्स अ ह्यूज स्टोर, पता नहीं कैसे क्या किया होगा उन लोगों, आई हैव नो क्लू, बट वट एवर यू कुड पिक, यू कुड इट इज योर्स फॉर फ्री। तो ऐसा नहीं हो कि हमको लेना ही नहीं, हम कुछ भी अगड़म पगड़म ले लें, इट शुड नॉट बी दैट। आप जब विजुलाइज कर रहे हो तो आप पहले से ही लिख लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, सो दैट यू स्टिक टू इट एवरी डे। आप जितने बार विजुलाइज करो, इट शुड बी द सेम थिंग। या हाँ, यस। अच्छा दी, विश कैसे लिखेंगे अपनी? विश लिखने के लिए नेहा आपको क्या करना होगा, या तो आप कल का सेशन सुन लो, या आपको, आपके पास बुक है, आप अभी ज्वाइन कर दो ना हम ग्रुप के। नेहा जी आप या आपको क्या करना है, या तो आप या तो आप डे 0 का सेशन देख लो, ठीक है, या कल का सेशन देख लीजिए, या आप डे 0 या और कल डे 13 का आप चैप्टर पढ़ लो। उसमें हम लोगों ने विश के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात की, और रॉन्डा ने बहुत अच्छे से चैप्टर में भी समझाया हुआ है। आप पढ़ लो उसको, उसके बाद यू आस्क दिस क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस। ओके, या थैंक यू। यस प्रिया जी, विजुअलाइजेशन करना 7 मिनट का एवरी डे, तो सेम वन ड्रीम ओनली, हो जो 10 ड्रीम्स लिखी है उसमें से कोई भी, देखिए, आई मीन हाँ 7 मिनट में आप क्या कर सकते हो, आप 1 मिनट के ऊपर आप 7 मिनट, मेरे से तो नहीं हो पा रहा था, तो व्हाट आई डिड वाज आई डिड अ कलेक्टिव ड्रीम। जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे ना प्रोजेक्ट टाइगर, या वो कल आप थे सारिका जी जिसमें था कि यमराज बोलते हैं कि एक विश मांगो, तो वो बोलती है मैं चाहती हूँ मैं अपने पोते को अपनी गोदी में चांदी की चम्मच से खाना खिलाऊं, नहीं, आई डिड हाफ ऑफ या यू हर्ड हाफ ऑफ दैट। तो उसमें देखिए उस लेडी ने क्या किया, पैसे भी मांग लिए, हेल्थ भी मांग ली, बहू भी मांग ली, और संग में एक पोता भी मांग लिया आपने। उसने देखिए कितनी सारी चीजें मांग ली। यस, तो वैसे ही आपकी अगर 3-4 ड्रीम्स कंबाइन हो सकती हैं। इट इज लाइक इफ आई से आई वांट टू बी 60, से नहीं, आई वांट टू बी 60 kgs, आई वांट टू गो टू कश्मीर, आई वांट टू हैव माय 2-3 नेफ्यूज विद मी। तो हम क्या देख रहे हैं ड्रीम में 7 मिनट्स में, दैट आई एम इन कश्मीर, हाँ, विद माई फैमिली, एंड आई एम सो फिट एंड फाइन दैट माई फोटोज आर ऑसम। तो मैंने क्या किया, 7 मिनट में हम ये सब चीज़ देख ली, एंड आई एम कैरिंग नाइस वॉच और समथिंग। तो मनी भी आ गया, मेरी ड्रीम वेट भी हो गई उसके अंदर, मेरी फैमिली में मैंने जितने मेरे को बच्चे चाहिए थे वो भी हो गए, और हम लोग सब लोग साथ में गए, मीन्स लाइक वी आर अ हैप्पी फैमिली टुगेदर। तो आप ऐसी चीज़ें देखो जो आप 3-4 ड्रीम्स जिसमें आप कंबाइन कर लो। आशमीन मैम इसको प्रोजेक्ट टाइगर बोलती हैं। आप मैंने ऐसे सोचिए, हम बचाना चाहते हैं टाइगर, ठीक है, वी वॉन्ट टू सेव टाइगर्स, बट आप सोचिए टाइगर रहते कहाँ हैं, जंगल में, ठीक है, वो खाते क्या हैं, सारे एनिमल्स खाते हैं। तो अगर हम टाइगर बचाने जा रहे हैं तो संग संग में पेड़ भी बच रहे हैं, ठीक है, सॉइल भी बच रही है, यहाँ पे पानी भी होगा,
बाकी एनिमल्स भी होंगे। अगर वहाँ पे हिरन है, जो भी एनिमल्स वो खाते हैं वो है, वो क्या खा रहे हैं, वो ग्रास खा रहे हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जा रही हैं। तो आप ऐसा एक अपना प्रोजेक्ट टाइगर ड्रीम बनाइए जिसमें आपकी 3 4 5 ड्रीम्स मेजर मेजर कवर हो जाएं। तो व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग, तो आप सिर्फ एक पे नहीं वर्क कर रहे हो, सारे पे फोकस कर रहे हो और सारी चीज़ें पूरी होती जा रही हैं। ओके, इट इज़ लाइक यू वांट टू स्पेंड मनी, बट यू वांट टू स्पेंड मनी ऑन अ 26 इंच जीन्स। तो आप क्या कर रहे हो, आप मे बी आई डोंट नो कहाँ जाके, गुची जाके या कहीं जाके आप जीन्स ले रहे हो और पतले भी हो गए हो और पैसे भी हैं, तो जैसे बोलते हैं ना, चारों हाथ नहीं, क्या बोलते हैं, दोनों हाथ जीन्स और सर कढ़ाई में, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ है ना, लाइक यू गॉट एवरीथिंग, सो दैट यू आर डूइंग। Okay, thank you. Yeah, so this is how you can do it. Yes, ब्रह्म मुहूर्त, दीपिका जी आर यू देयर? ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, देयर इज एवरीवन नोज ब्रह्म मुहूर्त नाउ आई गेस, नहीं क्या? टाइम होता है, दैट इज ब्रह्म मुहूर्त। Yes. एंड उसमें आपको जितना ज़्यादा आप विजुअलाइजेशन, भगवान से कनेक्ट, अपने लिए आपको जो भी करना है, मेडिटेशन, दैट इज सपोज टू बी वेरी वेरी पावरफुल। So if you can do it, that is the best time to do your visualization, your blessings, anything that you want. पूजा करना बोलते हैं लोग बहुत अच्छा होता है। आपको अपने काम के बारे में सोचना है, आपको जिस माने समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट लें कि वो प्रोजेक्ट लें, इस लड़के से शादी करेंगे, उस लड़के से शादी करें, माने जो भी आपके इस टाइप की चीज़ें हैं, when you start writing in ब्रह्म मुहूर्त, when you start talking to yourself, when you start being with yourself, you will get the answers. Yeah, I am yet to do that क्योंकि हम उतना जल्दी उठ नहीं पाते हैं। I will get up definitely someday, very soon. So, Thank you, एक- ma'am. thank you. प्रिया जी, वो जो आप ब्रह्म मुहूर्त का बोल रहे हो ना, मॉर्निंग का, तो व्हाट आई हर्ड कि इवन इवनिंग में अगर आप 6:30 to 7 जो टाइमिंग होता है, उसमें भी अगर इफ यू डू एनी मैनिफेस्टेशन, पूजा, दैट इज आल्सो इक्वल पावरफुल जो आप ब्रह्म मुहूर्त में होता है। Oh wow, very nice, very good, Belaji. This is like a savior for so many Thank of you. us. Yes. Yes. या हाँ, या और उसी समय सब लोग आरती भी करते हैं ना, आई गेस, है ना? yes, 6:37, yeah. Yes. Yes. So that time is also very very powerful time. Okay. So अगर जो मॉर्निंग में नहीं उठ पाते तो इवनिंग हाँ, okay. 6:30 to 7 में आप कर सकते हो। Very good. Thank you, Belaji. Thank you for this tip. Yeah. Most welcome. Most welcome. And Priya ma'am, I got the clue actually when you were talking about Brahma Muhurat. So I got the clue because when I was doing Ashwin ma'am's class, so I learned about Brahma Muhurat. So I started writing gratitude. Okay. So most of the days I used to get up at 4 and I used to write my gratitude. So I was just asking, like, now I'm not getting up at 4. I try, but I'm not able to make out. So is it fine when I get up at 6 I write? Of course, it is perfectly fine. हम तो कई लोग तो उससे भी बाद लिखते हैं. They are doing writing at 7. So I will not say वो ठीक नहीं है. Yonda बंदी कहती है आप जितना बजे उठो आपको okay? Okay, because I always set alarm for 4:30, but I just switch off the alarm and sleep. Yes. So that's why I just wanted to ask, and you just started with Brahma Muhurat. See, I'll tell you, आपको जाओ तो बहुत अच्छा है. कोई भी चीज़ को हमको ऐसे नहीं करना है that it takes you below the line. ठीक है, कि आपको लगे कि नहीं मेरे को 4 बजे ही उठना है और आपने उसको टेंशन बना लिया, आप उसके लिए चिंता कर रहे हो, तो उसका वो पर्पस नहीं होता. आप जितने बजे भी उठो, अगर आप उतने बजे दिल से फीलिंग से ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, दैट इज व्हाट विल काउंट. ओके, आप उठ पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं उठ पा रहे हो कर रहे हो तो आप उतना ही फीलिंग से करिए. यस. Okay, ma'am. Thank you so much. हाँ, Say hi. Ma'am, she wanted to say hi. Deepika ji, show us your daughter now. Hi, Diti. Deepika. Hi. Deepika ji, show us your daughter. One second, ma'am. Hi. Hi. So She sweet. wanted to attend the class, so she was like switching off the on the camera. Yeah, So she we was saw telling, her. I also want to learn grateful things. Very sweet. Now, hey, did you learn how to be grateful? Oh, so sweet. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you and good night, little one. Good night. Yeah. So
So thank you. Good Yes, night. good night. Yeah. So anyone else wants to share, or should we call it a night and we all have a magical day from tomorrow every day? Okay. So Thank you, Priya ji. Thank you. Thank you and so good much. night. Good night, and Thank you. see you all tomorrow. Thank you, Bye Priya. bye. Thank you.